بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتقبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو كان الناس على حب علي بن أبي طالب لما خلق الله الناس. اللهم صل على محمد. آج شاہ صاحب سے جس کے خطاب کرنے کا میں نے آپ کی گوشت گزار سرور کونین کی ایک حدیث سے متعلق کہا. سرکار نے ارشاد فرمایا ہے لوجت الناس علی حب علی بن ابی طالب. اگر یہ دنیا والے محبت علی پہ ولایت علی پہ اکٹھے ہو جاتے متفق ہو جاتے اقرار کر لیتے علی کو مان لیتے اللہ ہرگز جہنم کو خالقی نہ. تو معلوم ہوا اس حدیث سے مقدس سے کہ اللہ نے جہنم بنائی دشمن علی کے لیے. اگر کوئی بندہ جنت جانا چاہتا ہے جہنم سے بچنا چاہتا ہے اس کے اوپر واجب ہے علی ولی اللہ کا اقرار. اسی حدیث کے ضمن میں یہ حدیث نازل کیسے ہوئی اس کے اوپر چند جملے میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں. سرور کائنات رحمت دو عالم جلوہ فغن ہے توجہات ہے نا. سرکار کے پاس سلیمان فارسی بیٹھے. سرکار نے قریب بلایا سلیمان میرے پاس آؤ. سلیمان پاس آیا. شیخ ریاض صاحب سرکار نے ارشاد فرمایا سلیمان آج تجھے ایک بہت قیمتی چیز نہ عطا کروں. سلمان نے کہا یا رسول اللہ بہتر ہے کچھ مجھے عطا کر دیجئے پہلے بھی بہت کچھ عطا کیا ہے. پر سرکار نے ارشاد فرمایا سلیمان ایک وعدہ کر جو میں تجھے عطا کروں کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا. توجہ چاہتا ہوں اور اسی جملے پر میں نے دیکھنا ہے کیونکہ سرکار کا ایک اور بھی فرمان ہے کلم الناس علی قدر عقولہم. لوگوں سے گفتگو کرو ان کے عقلوں کے مطابق. اور دوسرا بھی سرکار کا فرمان ہے ہر جگہ پہ ہمارے فضائل کا بیان کیا کرو. ہر بندے کے پاس کا کام ہی نہیں ہمارے فضائل برداشت کرنا. سرکار نے ارشاد فرمایا سلیمان میرے سے وعدہ کرو تم یہ گراں تحفہ یہ قیمتی چیز آگے کسی کو بتاؤ گے نہیں. سلیمان نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ میں کسی کو اس کا ذکر نہیں کروں گا کسی کو بتاؤں گا نہیں. لیکن سلیمان بیچارہ کیا کرتا یہ بات ہی اتنی بڑی تھی سلیمان بھی برداشت نہ کر بیٹھا. ادھر رسالت میں سے وعدہ کر لیا ادھر یہ تحفہ قبول کر لیا. سرکار نے فرمایا سلیمان اگر یہ دنیا والے ولایت علی کے اوپر اکٹھے ہو جائیں اقرار کر لیں متفق ہو جائیں اللہ جہنم کو خالق ہی نہ کرتا. سلیمان نے
सुना, ये हदीस सुनी, सलेमान के दिल के अंदर, सलेमान के सीने के अंदर इस हदीस के फज़ाइल की ठाठे बजना शुरू हुई। पढ़ना मैंने उतना है जितना आप लोगों ने सुना, लेकिन इतनी भी रियायत नहीं है। मैं फिर लंबा हो गया तो फिर हो गया। नाराया हैदरी। कोशिश करें मेरे साथ, आप साथ देते हैं ताकि मैं थोड़े वक्त में बहुत कुछ पढ़ के आपकी सहमतों को। जियो जियो सही है, माशाअल्लाह। ठीक है या रसूलल्लाह, मैं किसी को बयान नहीं करूंगा। रिसालत इमाम से हदीस सुन ली, सुनने के बाद सलेमान का अंदर, सलेमान का सीना फज़ाइल अली से, इस हदीस से फूलने लगा। क्या बात है, ये अजीब बात है, अजब बात है कि रिसालत इमाम ने दुनिया के पूरे कवानीन को एक कूजे में बंद करके रख दिया है, हर चीज को समेट कर रख दिया है, पूरी जन्नत और जहन्नम का दारोमदार इसी हदीस के ऊपर रख दिया है। ये आम बात नहीं है। रिसालत इमाम मिस्दाक वही फरमा रहे हैं, अगर ये लोग अली की विलायत में इकट्ठे हो जाए, अल्लाह जहन्नम को खाली ना करता। ये दुश्मन अली के लिए जहन्नम है। सलमान चला, मदीने का चक्कर लगाया, मदीने के गलियों में चल रहा है। अब समंदर है इसके दिल में, इसका सीना फटने लगा, अब किसी को बयान नहीं कर सकता। उधर रसूल के साथ किया हुआ वादा याद आया। सलमान ने मदीना छोड़ा, मदीना से बाहर सफर करना शुरू किया। सलमान ने जंगल की तरफ मुंह किया, चलता 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 एक सहरा में पहुंचा। सहरा में जाकर देखता है कोई ऐसा मकाम नजर नहीं आता जहां पर बैठ के अपने आप से ये गुफ्तगू करे। सलमान सोच रहा है मैं अपने आप से गुफ्तगू करूंगा, यही हदीस अपने आप को सुनाऊंगा और फज़ाइल अली से महजूज होऊंगा जैसे आप महजूज हो रहे हैं। सलमान ने शहर छोड़ा, जंगल की तरफ रुख किया, जंगल में घूमता रहा, ढूंढता रहा, मकाम देखता रहा। जाते जाते एक अंधा कुआं नजर आया। सलमान को एक अंधा कुआं नजर आया, देखता है इसमें पानी नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है, बहुत गहरा है, इतना गहरा है जहां तक नजर कर रहा है कुछ नजर ही नहीं आ रहा, ये सूखा हुआ है, इसमें कुछ है ही नहीं। सलमान ने इरादा किया बस लोगों को तो बताना नहीं है, मैं इसी कुएं को फज़ाइल अली सुनाता हूं। जिधर है जिंदा सलामत रहे। सलेमान ने इस कुएं के मुंह के ऊपर अपना मुंह रखा और यही हदीस पढ़ी, लवै तमन्ना अला हुब्बे अली इब्न अबी तालिब। अगर ये लोग, दुनिया के लोग, पूरी कायनात जिन्नो इंस विलायत अली पे इकट्ठे हो जाते, अल्लाह जहन्नम को खाली न करता। कुएं की क्या जुर्रत है, चाहे सूखा था चाहे अंधा था, इतनी बहुत बड़ी फजीलत अली बर्दाश्त करता। कुएं की गोद में जे फजीलत अली पहुंची, इधर सलमान की जबान ने इस हदीस को खत्म किया, इधर से कुएं में पानी उबला, कुआं किनारों तक भर गया और कुएं का भरना था, उसमें एक शजरा नमदार हुआ। देखते ही देखते शजरे के ऊपर टहनियां लगी, टहनियों के ऊपर पत्ते लगे, पत्तों का लगना था, उस कुएं से ये दरख्त बहुत बड़ा हो गया। सलमान बैठ कर देख रहा है, अजीब है, अंधा था, इसमें था ही कुछ नहीं। मैंने इससे ये हदीस सुनाई और इस हदीस से ये दरख्त निकला, दरख्त सब्ज हुआ, उसके ऊपर टहनियां लगी, टहनियों के ऊपर पत्ते लगे, पत्तों के ऊपर यही हदीस लिखी हुई थी, लवै तमन्ना अला हुब्बे अली इब्न अबी तालिब लमा खलक अल्लाह अन्नार। अल्लाह ने इधर से आंधी चलाई, दरख्त के पत्तों से, ये टहनियों से ये पत्ते गिरना शुरू हुए, आंधी की स्पीड बढ़ना शुरू हुई, मदीने के हर घर में ये हदीस आपकी समातों से सदके हर घर में ये हदीस पहुंच गई। लोग जमा हुए, रिसालत इमाम के पास है, या रसूलल्लाह अजब मंजर देखा है, आज हमारे घरों में पत्ते आ रहे हैं, ऊपर ये हदीस लिखी हुई आ रही है। रिसालत इमाम ने इरशाद फरमाया जाओ सलमान को बुलाओ।
सुलेमान को बुलाया गया, सुलेमान पास आया। सुलेमान, मैंने तुझे मना किया था कि ये हदीस किसी को बयान नहीं करनी। सरकार ने, सुलेमान ने सरकार रिसालत में माफ किया गया, हाथ बन के अदब से गुजारिश करके साथ झुका के खड़ा हो गया, या रसूल अल्लाह, मैंने किसी के साथ कोई इस हदीस का जिक्र नहीं किया, लेकिन मजबूर था, मैं तो जंगल में गया और इस अंधे कुएं को मैंने ये हदीस सुनाई, वहां से ये पत्ते नमूदार हो गए। ये है फजीलत अली। वाह, तवज्जो है तो क्या बात है। माशाअल्लाह, मौला के फजीलत की एक और हदीस पढ़ो। क्या कहने, बिस्मिल्लाह से। सरकार ने इरशाद फरमाया, सैयद साजिदीन से रवायत है, मेरे मौला इरशाद फरमाते हैं, वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब लअल्लकुम तत्तकून। सरकार से साहिब ने सवाल किया, मौला ने इसकी तफसीर बयान की। मौला, इस आयत क़िसास से हुक्म क्या? सरकार ने इरशाद फरमाया, बहुत तवील हदीस है, उससे नतीजा चंद जुमले अखज़ करता। सरकार ने इरशाद फरमाया, किसी को हक नहीं है वो किसी की जान को नुकसान दे, खत्म करे। फिर सरकार ने इरशाद फरमाया, ये कानून दुनिया है शेख साहब, कातिल मकतूल, जालिम मजलूम। तवज्जो चाहता हूं, आप मेरे साथ चलोगे तभी नतीजे में मजा आएगा। क्या बात। कातिल मकतूल, कातिल जहन्नम जाएगा, मकतूल जन्नत जाएगा, जालिम जहन्नम जाएगा, मजलूम जन्नत जाएगा। ये दो अलग अलग चीजें। लेकिन सैयद साजिदीन ने इरशाद फरमाया, अय्युहन नास, ऐ लोगों, क्या तुम चाहते हो इससे बहुत बड़े किसास के मुताबिक तुम्हें मैं बताऊं? इससे बढ़कर कातिल और मकतूल से, जन्नती और जहन्नमी से बढ़कर कुछ और इसके मुताबिक बताऊं? भला जब रसूल अल्लाह, हाँ ऐ रसूल के बेटे, इरशाद फरमाइए, या सैयद साजिदीन, या ज़ैनुल आबिदीन, हमें इसके मुताबिक इरशाद फरमाइए। मौला ने इरशाद फरमाया, कातिल वल मकतूल किलाहुमा फिन्नार। वाह 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 वाह। आपने थोड़ी सी बात की, कानून ही बदल गया। कातिल मकतूल किलाहुमा फिन्नार, कातिल और मकतूल दोनों जहन्नम में जा रहे हैं। इमाम इस आयत की तफसीर कर रहे हैं, मौला वो कौन सा कातिल है, वो कौन सा मकतूल है जो दोनों ही जहन्नमी है? हमने तो ये सुना कि कातिल जहन्नम में जाएगा, मकतूल जन्नत में जाएगा, एक जालिम है, एक मजलूम है। मौला ने इरशाद फरमाया, इस आयत की तफसीर से इससे मुराद ये है, जो बंदा विलायत अली इब्न अबी तालिब से रोके वो भी जहन्नमी है, जो उसकी बात मानकर रुक जाए वो भी जहन्नमी है। क्या बात है। क्या कहने से, क्या बात है सैयद, क्या बात है। जनाब सैयदा आप पे राजी, कातिल भी जहन्नम में, मकतूल भी जहन्नम में। वाह, ये वो कत्ल कर रहे हैं जिसकी माफी ही नहीं, जिसने विलायत अली से रोका और जो उसके कहने पे रुक गया वो भी जहन्नम में जाएगा, ये भी जहन्नम में जाएगा। एक और हदीस आपकी कोशिश गुजार करता हूं ताकि मौला का फज़ैल जो है मेराज की मंजिल तक पहुंच जाए। जिब्राइल फरिश्ता ऐसा मुअज़्ज़म फरिश्ता है, साकिब साहब, फरिश्तों का सरदार। इसने कुछ दुनिया में काम किए हैं जो निराले हैं, और फिर इसी कामों में उसने फ़ज़ाइल अली पढ़ी। वाह 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 वाह, क्या कहने। ज़रबत अली अस्क़ल मिन सबअत मदानिन। हदीस का मौजू ये है, मौला अली की ज़र्ब, एक ज़र्ब, वो जो आपने पहले ज़रबत सुनी हुई है वो नहीं, ये और ज़र्ब। पहले आपने एक सुन रखी, आज दूसरी मेरे से समाप्त। मौला अली की ज़रबत भारी है। जिब्राइल इरशाद फरमा रहा है,
लूत के 7 शहरों से। वाह ये कैसे भारी है? जिब्राइल मौला ने ज़र्ब चलाई, चलता हुआ, भागता हुआ, दौड़ता हुआ, परवाज करता हुआ, बड़ी परेशानी के आलम में रिसालत माँ की बारगाह में आया। कहता है या रसूलल्लाह, अजब मंजर देखा है मैंने। सरकार ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल क्या अजब मंजर देखा है? या रसूलल्लाह, पहले मैंने आसमान से, मलाइकों से, फरिश्तों से सुना था, ला सैफ इल्ला जुल्फ़कार, ये फजीलत तेरी तो मैंने सुनी थी, लेकिन आज मैंने अजीब मंजर देखा है। रसूल ने फरमाया, जिब्राइल बयान तो कर, तूने देखा क्या है? जिब्राइल कहता है, या रसूल अल्लाह, जब मैंने, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया, कौम लूत बागी हुई, इनकार करने लगी, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इसके पूरे के पूरे शहरों को पलट कर रख दे। तवज्जो चाहता हूँ, इसी में फजीलत अली है। जिब्राइल कह रहा है, मैंने लूत के 7, लूत अलैहिस्सलाम के 7 शहरों को, 7 मदीनों को, बहुत बड़ी आबादी होती है, बड़े बड़े शहर थे, उनको उठाया। कैसे उठाया? कहता है, मैंने अपने एक पर के, एक रेशे के ऊपर, मैंने अपने, जिब्राइल कह रहे हैं, अपने पर के एक रेशे के ऊपर, एक हिस्से के ऊपर ये 7 शहर कौम लूत के उठाए और उठाकर पूरी रात में खड़ा रहा, ताकि दूसरा अमर आए और उसके ऊपर अमल करूं, जब तक अल्लाह ने मुझे दूसरा हुक्म नहीं दिया। जिब्राइल कहता है, मैंने अपने पर के एक रेशे के ऊपर इन 7 शहरों को उठाया और उठाकर खड़ा रहा। तवज्जो चाहता हूँ, फिर ऐसे नहीं खड़ा रहा, कहता है मैं इनको इतना बुलंदी के ऊपर ले गया, इतना अर्श के करीब ले गया कि उस शहर में जो मुर्ग थे, उन मुर्ग की आवाजें अर्श वाले सुन रहे थे, बच्चों की पुकार अर्श वाले सुन रहे थे, इतना करीब ले गया। और पूरी रात मैं लेकर खड़ा रहा, लेकिन ये मुझे भारी नहीं लगा। अभी मैं आपको तैयार कर रहा हूँ जुमले के। माशाअल्लाह, इतने वजनी शहर जिब्राइल कह रहा है, मैंने अपने पर के एक रेशे के ऊपर उठाए और इतने बुलंद ले गया कि वहां पे मुर्ग की आवाज अर्श वाले सुन रहे थे और बच्चों की पुकार अर्श वाले सुन रहे थे। और पूरी रात मैं लेकर खड़ा रहा। पूरी रात लेकर खड़ा होने के बाद फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, फिर मैंने उसको नीचे फेंका, तबाह बर्बाद कर दिया। फिर इरशाद फरमाता है, कहता है, लेकिन ये मुझे भारी नहीं लगा। जब अली मौला ने मरहब को ज़र्ब मारी, ऐसी कारी ज़र्ब मारी, मौला अली ने, अल्लाह ने हुक्म दिया, जिब्राइल जाओ अपने पर बिछाओ, वरना जमीन ऐसे 2 टुकड़ों में बट जाएगी जैसे मरहब बट गया है। कहता है, फाजिल साहब जो इजाफी शरबत थी उसके नीचे मैंने अपना पर रखा। एक तरफ से मौला अली के बाजू को मिकाईल ने पकड़ा, एक तरफ से इसराफील ने पकड़ा, लेकिन मुझे ये ज़र्ब भारी लगी। क्या बात है, जो है क्या बात है, आज बात आ गई है, राज करा, क्या बात है। मरहब को ज़रब लगी, मौला ने इसको 2 टुकड़ों में तकसीम किया। मरहब की बहन तख्त के ऊपर सोई हुई, उसी कलम जो ही मौला की ज़रब लगी, ये तख्त से नीचे गिरी, इसका पेशानी जख्मी हुई, पेशानी जख्मी हुई। जंग खत्म हुई, जंग के बाद कैदियों को लाया गया। ये मरहब की बहन भी नहीं कैदियों ने, सरकार रिसालत माब ने देखा इसकी पेशानी को जख्मी, बुलाया, पूछा तेरी पेशानी के ऊपर क्या हुआ? सरकार ने पूछना था, इसने बताया, या रसूलल्लाह, जब तुम्हारे भाई अली ने ज़रब चलाई, एक दफा गले में जलजला आया और इतना बड़ा जलजला आया, पलंग मेरा बुलंद हुआ और उससे
نیچے میں گری اور جب میرا سر زخمی ہو گیا، رسالت ماں مسکرائے، کہا اے مرحب کی بہن، اے صفیہ، علی کی زد سے صرف تو پلنگ سے نہیں گری، اللہ کا عرش بھی ہل گیا تھا۔ فلان اتنا کافی، انشاءاللہ پھر موقع ملا خدا نے علی کا۔ میرے مولا نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا۔ میرے مولا سوچتے ہوئے ایک وقت اپنی بہن کے پاس آئے، آ کر کہا بہن زینب، عالیہ مولا حسین کے پورے سفر کی حصے دار ہے، جہاں بھی مولا کام کرتے بہن زینب سے بھی مشورہ۔ بہن کے خیمہ میں آئے، آ کر ارشاد فرمایا، بہن زینب، میرے بابا علی، میرے نانا رسول جب کسی میدان میں جاتے ہیں، ایک علی صاحب ہوتے جنگ فتح کر کے آتے، لیکن میرے لیے مشکل یہ ہے، میں کربلا جا رہا ہوں، میرا مشن اور ہے، میرے ساتھ 4 علی۔ عزادار و بیوی نے مشورہ دیا، المختصر کروں، جناب امیر مسلم کو بلایا، بلا کر ارشاد فرمایا، مسلم کو نے کوفے جانا ہے، کوفے والوں کے 18,000 کے قریب خط آ چکے ہیں۔ جناب مسلم تیار ہو گئے، لبیک کہا، لیکن میرے مولا نے ایک حسرت ظاہر کی، مولا مجھے جانے سے انکار کوئی نہیں ہے، لیکن میری حسرت ہے، آپ کربلا جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ رہنے ہیں، کربلا میں جنگ ہوگی، میں چاہتا ہوں میں بھی آپ کے ساتھ کربلا کا شہید بن جاؤں۔ عزاداروں، میرے مولا نے وعدہ کیا، اے مسلم تم جاؤ، میں حسین وعدہ کرتا ہوں پوری کربلا کا پہلا شہید ہوگا۔ عزاداروں، آج یکم محرم ہے، میرے مولا کربلا کے قریب ہیں، میرے مولا مسلم نے اپنے دونوں بیٹوں کو لیا، لے کر سفر کرنا شروع کر دیا، اور عزاداروں میرے مولا کوفہ میں پہنچے، کئی ہزار کی تعداد ملتی ہے، لاکھوں کی تعداد ملتی ہے، جنہوں نے جناب مسلم کی بیعت کی۔ عزاداروں، ایک دن ایسا آیا، اس ملعون نے اپنا بھید بدلا، بصرہ چھوڑا ابن زیاد نے آ کر اعلان کروا دیا کہ آج حسین ابن علی کوفہ میں وارد ہو رہے ہیں۔ عزاداروں، اس نے پورے کا پورا بھیس بدلا، لباس بدلا، جب یہ کوفہ میں آ گیا، جب یہ کوفہ میں داخل ہوا، اس نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا، اٹھا کر کہا، کوفیو، میں نے تجھے دیکھ لیا ہے، اب میں دیکھتا ہوں کون ناصر حسین ہے۔ عزاداروں، اب یہ منظر آیا، جناب مسلم مسجد کوفہ میں اکیلے رہ گئے، 2 مسلم کے بیٹے اور ایک جناب مسلم رہ گئے۔ عزاداروں، وہ ایک ایسی اندھیری رات آئی جب میرے مولا نے اپنے دونوں بیٹوں کو ساتھ لیا، ساتھ لے کر اس قاضی کے دروازہ پہ آئے، آ کر کہا، قاضی، یہ میرے چھوٹے چھوٹے 2 بیٹے ہیں، کچھ دیر کے لیے ان کو اپنے گھر میں پناہ دے دے، جب میں یہ گلی کا موڑ بن جاؤں، جب یہ میں گلی آگے عبور کر جاؤں، ان کو آزاد کر دینا۔ عزاداروں، مختصر کروں، کیسے گزرتی رہی مسلم کے بیٹوں پہ، کیسے گزری جناب مسلم پہ، بیٹوں سے جدا ہوئے، آئے ایک دروازہ پہ، جناب مسلم بے تنہا، ایسے تنہا ہے، ایک دروازہ پر آ کر جہاں جاتے ہیں دروازہ بند ہو جاتا ہے، ایک بوڑھی خاتون ہے، جس نے دیکھا کوئی پردیسی ہے، دروازہ کھول کے کہتی ہے، اے پردیسی چلا جا، تجھے پتہ نہیں ہے کوفے کے حالات بدل گئے ہیں، تیرا اپنا کوئی گھر نہیں ہے۔ میرے مولا نے ارشاد فرمایا، اے بوڑھیا، اگر گھر ہوتا میں ان گلیوں میں نہ بیٹھتا، ان دروازے پہ نہ بیٹھتا۔ یہ بی بی طوع کے دل میں خیال آیا، کہیں میں سفیر حسین کو تو نہیں دیکھ رہی، آگے بڑھ کے کہتی ہے، کیا تو سفیر حسین تو نہیں ہے؟ میرے مولا نے کہا، ہاں میں سفیر حسین ہوں۔ عزاداروں، کہا، پھر دروازے پہ کیوں بیٹھا ہے؟ یہ تیری نوکرانی کا گھر ہے، اپنے گھر سمجھ کر داخل ہو جا۔
अज़ादारों जनाब मुस्लिम जनाब तवा के घर आए, रात गुजरी, खबर पहुंची अपने ज़ियाद को कि जिसको तू कूफा से पैर ढूंढ रहा है वो कूफा में एक घर में मेहमान है। अज़ादारों फौजों की फौजें आने लगी, घोड़ों के टापों की आवाजें आने लगी। अज़ादारों इतनी करीब से आवाजें आई, जनाब मुस्लिम ने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अपनी तलवार को संभाला। जनाब तवा ने पूछा आप घर से बाहर नहीं जाओ, कहा बाहर नहीं जाओ। मेरे मौला ने इरशाद फरमाया ऐ तवा मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती, मैं घर के अंदर हूँ और ये जालिम जंग करते हुए दाखिल हुए। अज़ादारों हुसैन का शेर ऐसे बिखरा, ऐसे घर से बाहर बुलंद हुआ, 10,000 के दस्ते को कत्ल किया। कत्ल करने के बाद एक फौजी भागता हुआ इब्न ज़ियाद के पास आया, आकर कहता है मलऊन 10,000 का फौजी दस्ता क्या करता है, कुछ और फौजें भेज, तू क्या समझता है। उसने कहा 10,000 को थोड़े हैं, एक मुस्लिम है। अज़ादारों ये मलऊन कहता है तुझे क्या पता, अली के शेर से, हुसैन के शेर से, सफीर हुसैन से लड़ना आसान बात है। उसने एक ही लम्हे में 10,000 फिन्नार कर दिए। अज़ादारों कई फौजों के दस्ते आए, मेरे मौला जंग करते रहे, आशिमी खून जंग करता रहा। अज़ादारों इन मलऊनों ने देखा ये हमारे हाथों ऐसे नहीं आएगा। एक गड्ढा खोदा, गड्ढा खोदने के बाद मेरे मौला उसमें गिरने लगे। एक मलौना ने ऊपर से पत्थर फेंकना चाहा, एक बीबी की आवाज आई मुस्लिम जरा ऊपर के, ऊपर से पत्थर आ रहा है। अज़ादारों मौला का गिरना था, ये मलौन टूट पड़े। अज़ादारों मौला को कैद किया, इब्न ज़ियाद के दरबार में ले आए। अज़ादारों मेरे मौला आ गए दरबार में, मेरे मौला ने सर उठा कर देखा, इधर से इस मलऊन ने देखा। ये मलऊन कहता है मुस्लिम मुझे अमीर कहे। मेरे मौला ने इरशाद फरमाया इब्न ज़ियाद मेरा अमीर हुसैन है, मैं तुझ पे भी लानत करता हूँ, तेरी अमीरत पे भी लानत करता हूँ। जनाब ज़हरा की आवाज आई ऐ अमीर मुस्लिम मैं वादा करती हूँ तूने ज़ालिम गुर्बत में मेरे हुसैन को अमीर कहा, हश्र तक तू अमीर कहलाएगा, मेरा हुसैन गरीब कहलाएगा। अज़ादारों मैं नहीं पढ़ता दरबार में क्या जुल्म हुए, मेरे मौला को दारुल अमारा की छत पे लाया गया। अब मंजर देखना, मेरे मौला का सर झुका हुआ है, जिल्लाद के हाथ में तलवार है, और जनाब जिल्लाद के हाथ में तलवार है। यही मंजर करबला के बाहर मेरे हुसैन मौला ने देखा, आहें भर के रो रहा है हुसैन। देख रहे हैं मौला अब्बास दौड़ते हुए करीब आए, आकर कहा मौला अगर अकेले रोना था मुझे साथ क्यों लेकर आए। अज़ादारों मेरे मौला ने कहा ऐ अब्बास तू बर्दाश्त नहीं करेगा जो मंजर मैं देख रहा हूँ। मेरे मौला ने कहा मौला मैं वादा करता हूँ बर्दाश्त करूंगा। अज़ादारों मेरे मौला ने वादा किया, मेरे हुसैन मौला ने करीब बुलाया, अपना दस्ते इमामत बुलंद किया। मेरे मौला क्या देखते हैं, दारुल अमारा की छत है, जनाब मुस्लिम का सर है, जलाद के हाथ में तलवार